something like a piece of paper. So these are the two laws of totally. refraction of light. The first law, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Okay, that means कि जो in the diagram which we drew, तो इसमें ये सारे चीज़ नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रे इंसिडेंट रे विल ऑल लाई ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नॉट आउटसाइड द पेपर, नॉट इनसाइड द पेपर. लाइक व्हेन यू आर डूइंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि एक एरो ऐसा बनाते थे हम लोग. इसका मतलब क्या होता था, आउटसाइड द पेपर. Yes, sir. और एक एरो ऐसा Sir. बनाते थे मतलब इनसाइड द पेपर, ऐसा था इलेक्ट्रिसिटी में. Sir. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, Sir. आउटसाइड द पेपर इनसाइड द पेपर नहीं होना चाहिए, ऑन द पेपर ही होना चाहिए, लेफ्ट राइट होना On चाहिए the कुछ भी. plane. यस. Same plane. ओके, अंडरस्टूड. प्लेन Uh, मतलब. uh, ओके, अब uh. देखो नेक्स्ट लाइन. द रेशियो ऑफ द The साइन. ratio हाँ, of पढ़ो पढ़ो. angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. This is true for angle 0 is lesser than angle I than ओके. angle 90. ओके, लिसन. इसमें क्या है कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस डायग्राम, दिस वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम नॉर्मल to the angle, this was angle of incidence, this is I, and this one is R, Uh, this is R. So it says sine I, sine I upon sine R is equals to a constant, 1. is constant. Okay, this is Okay. Snell's law, nothing else. Sin I plus Okay. sin R is constant. The constant value is called the refractive index of the second medium with respect to the first. Let us study about refractive. Okay. But this works under a condition. Sin I by sin R is equals to C. This is called Snell's law. This is Snell's law. But it works under a condition that a certain a particular color of light, I should change the color, this is not quite visible, right? For a particular color of light and a fixed medium. Alright. Understood? For a particular color of light. And a given pair of मतलब सिर्फ media. ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हो गया क्या? Yes, medium pair, that means देखो बता रहे हैं कि फिक्स मीडियम एज इन की फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड a given pair of media, given pair of media, given pair of medium. Pair of medium मतलब कि first medium, if first medium is air, then the second medium will be water. Like in a river or pond, कि लाइट सनलाइट जो है एयर से वाटर में जा रहा है ना, तो एयर और वाटर. और फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास. एयर टू ग्लास भी ट्रांसमिशन हो सकता है. एक और पेयर का एग्जांपल दो, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया का एग्जांपल दो. ग्लास के साथ एक वाटर हो एयर और सकता है. ऑयल. हाँ, ग्लास एंड वाटर हो सकता है, एयर एंड ऑयल हो सकता है. ओके, सो यू गेट द आइडिया राइट कि कैसा हो सकता है पेयर ऑफ यस. मीडियम. ओके,
तो for a given pair of media, sin I by sin R will be constant for a given color of light. Why color of light? Because different color of light, different color of light have different wavelengths Like, and therefore can have different values of what? Angle of incidence and refraction. Angle of incidence and refraction. Understood? हाँ सर. So for a given pair of media, ये sin I by sin R will be constant and it is called Snell's law. This is it. तो सर पर्टिकुलर कलर मतलब कौन सा कलर? जैसे अगर रेड लाइट है रेड होना चाहिए, ग्रीन है तो ग्रीन होना चाहिए, वाइट लाइट है तो वाइट लाइट होना चाहिए, वैसा. ओके. सनलाइट को कौन सा बोलेंगे White सर? light, it is mixture of 7 colors, it is white light. Okay. And Oh, sometimes अब ये बात हो गया तो ऐसा कि if the sunlight which is a combination of more than one colors, which is 7 colors, pass through a prism, passes through a prism like structure, then what happens? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो यस, लाइट को. बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो तुमको बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ है, तो डिफरेंट वैल्यूज होगा उसका, रिफ्रैक्शन का वैल्यू चेंज हो सकता है. तो अगर प्रिज्म से पास कराते हैं हम लोग, और ये है हमारा प्रिज्म, ऊपर का पार्ट प्रिज्म है मेरा, तो लाइट अगर वाइट लाइट आ रहा है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इजी. हाँ सर. तो फिर सर प्रिज्म बनता किससे, कैसे बनता है prism? सिंपल ग्लास से बनता है प्रिज्म. ग्लास, प्रिज्म को मतलब है सिर्फ शेप से, वो ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए, टेट्राहेड्रन शेप में होना चाहिए. ठीक है. दो तरह का प्रिज्म होता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, वो ऐसा बनता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा बनता है, दिखाते हैं तुमको. तो डायमंड शेप का. नहीं, हाँ डायमंड शेप का तो रहेगा ऑफ कोर्स. ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने के लिए क्या करना होता है, हाँ, कि पहले हम लोग लेते एक ट्रायंगल बेस के लिए, ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं बेस के लिए, और इसके ऊपर हर बेस, हर साइड से एक एक ट्रायंगल ऊपर की ओर हम लोग खड़ा कर देते हैं. ठीक है. अच्छा. समझ, विजुअलाइज हो पा रहा है क्या कैसा? एक ट्रायंगुलर बेस लिया, इसमें कितना ट्रायंगल्स हो गया, कितने ट्रायंगल्स हो गए इसमें, इस प्रिज्म में? 5. 4. एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक नीचे, 4. हाँ हाँ. 4 फेसेस, इट हैज़ 4 फेसेस. ओके. ओके. हाँ. और एक और टाइप का प्रिज्म होता है, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल प्रिज्म. अब टेट्राहेड्रल प्रिज्म कैसा बनता है कि हम लोग पहले नीचे बनाते हैं एक बॉक्स, स्क्वायर. ऑलराइट. अब स्क्वायर से हम लोग हर बेस से एक एक ट्रायंगल खड़ा करते हैं ऊपर की ओर. दिख रहा है स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा? यस सर. पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. ट्रायंगल. हाँ, पिरामिड काइंड ऑफ हाँ स्ट्रक्चर सर. है ये, है ना? यस सर. तो ऐसे ही कितने भी नंबर ऑफ साइड्स के साथ हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, कि अगर हम लोग अभी 3 साइड का किए और जितने साइड बने उतने कलर आएंगे क्या? नहीं नहीं, कलर तो साथ ही है अवेलेबल हमारे पास, डिफरेंट. वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. व्हाट आर द 7 कलर्स? विगयर. विबग्योर, VIBGYOR. V वायलेट, stands for इंडिगो, violet. ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. Yes.
नाउ ये भी दिख रहा है कि अगर 5 साइड भी रहा तो इससे भी हम लोग एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ, तो उसी तरह डायमंड का शेप भी कुछ इसी टाइप का होता है। यस सर। तो डायमंड भी इसलिए लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। डायमंड में और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसकी वजह से डायमंड इतना लाइट इमिट करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे बहुत आगे। चमकता है। हाँ, तो प्रिज्म बनाने का कॉन्सेप्ट तुम समझ गए कि एक बेस लेना हम लोग को, विच कैन बी 3 और मोर देन 3 साइड्स, और उस पर हम लोग को डिफरेंट ट्राइंगल्स, जितना पॉसिबल ट्राइंगल से उतना कंस्ट्रक्ट करके क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है, एंड दैट इज़ अ प्रिज्म। दिस इज दीज ऑल आर प्रिज्म्स, ओके। तो प्रिज्म लाइट को ओके। उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन कर, वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन कर सकता है प्रिज्म, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग है तो उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा, तो अलग अलग एंगल पे वो रिफ्रैक्ट होगा तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का सीक्वेंस है अपने पास। वेब बिग्योर, वी आई वी आई बी जी वाई जी। ओ आर। नीचे कहाँ गया? हाँ, हम्म। ये हो गया हमारा सीक्वेंस। कलर सबको पता है, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लैक, नहीं ब्लैक तो होता नहीं, ब्लू, वायलेट, Blue, इंडिगो, ब्लू, blue, ग्रीन, येलो, yellow, ऑरेंज, blue, रेड। green, yellow, orange, red. ओके, सो दीज आर ऑल द 7 कलर्स प्रेजेंट इन वाइट लाइट, ठीक है। और हाँ। क्या है बुक में? तो हाँ, और ये सब कुछ बताने के बाद ये बताना भूल गए, ये जो सी है, जो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू आएगा स्नेल्स लॉ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिफ्रैक्टिव ओके। इंडेक्स। ये फिक्स रहेगा मीडियम के लिए, एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए, लेकिन पेयर ऑफ मीडियम एंड पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड रहता है। वैल्यू ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज फिक्स्ड। ओके। स्पीड ऑफ लाइट, और क्या है इधर? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। You have already studied the ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. The extent of the change in direction that takes place in a given pair of media may be expressed in terms of the refractive index, the constant appearing in the right hand side, which we just derived. The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. Like when the light was traveling in air, it had a speed of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, right? But as soon as it entered a medium, a different medium, which is denser than air, or the medium in which it was traveling before, if it is denser than air, then the light will slow down in this medium a little bit. The light will travel little bit slower in this medium now, okay? तो वो जो यस रिलेटिव सर। स्पीड है, जो घट गया, स्पीड अगर घट गया, पहले कुछ स्पीड थोड़ा सा एक तो बेंड भी हुआ, ये स्ट्रेट आ रहा होता है तो स्ट्रेट निकल जाता है, फिर कुछ नहीं। अगर थोड़ा एंगल पे आ रहा है तो ही वो फिर रिफ्रैक्ट होगा। स्ट्रेट लाइट स्ट्रेट निकल जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि हाँ। नॉर्मल से परपेंडिकुलर लैंड किया तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसका स्पीड था 3 इंटू सर 3 लाख पर सेकंड होता है ना? हाँ, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये स्पीड था मेरा लाइट का। इसमें हम लोग का स्पीड ग्लास में कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट देन इट इज़ लेस देन 3 into 10 रेज टू द पावर 8। और एक फन फैक्ट भी कि लाइट हमेशा एयर में फास्टर ट्रैवल करेगा देन एनी अदर मीडियम। इन एयर एंड वैक्यूम द स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलमोस्ट सेम, एंड इट इज़ फास्टर देन एनी अदर मीडियम। ऑल अदर मीडियम लाइट इससे स्लो ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। वाटर रहे, ग्लास रहे, ऑयल रहे, कुछ भी रहे, सब कुछ एयर और वैक्यूम से ज़्यादा डेंस है, ठीक है। ओके। यस। स्नेल्स लॉ क्लियर हुआ? हाँ सर।
तो वो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, n2/1। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is given by the ratio of the speed of the light in medium 1 upon the speed of the light in medium 2। ये तुमको मिला क्या, ये फिगर 10.1 के ऊपर लिखा हुआ है ये पैराग्राफ में। हाँ सर देखा। हाँ, तो यहाँ पे देखो n21 दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में लिखेंगे। तो n21 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब अगर हम ग्लास के लिए निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विच इज़ मीडियम 2। तो इससे हम लोग को मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है उसको हम लोग Yes, sir. नीचे रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 is represented by n12। it is given by n12 which is speed of light in medium 2 upon medium 1। that means जिसका इसमें हम लोग को मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना था तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में डाल दिए, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना था उसको हम लोग न्यूमरेटर में डाल दिए। अंडरस्टूड? Yes, sir. देखो इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum। this is called the absolute refractive index of the medium। जो भी पेयर रहेगा that means कोई भी पेयर, a pair of VH vacuum and a pair of vacuum and glass, अगर इसका हम लोग कैलकुलेट किए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम देन इट विल बी कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। Vacuum and glass. हाँ, वैक्यूम अगर रहेगा वैक्यूम एंड वाटर, तो ये वाटर एब्सोल्यूट यहाँ पे लिखना होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर वैक्यूम एंड वाटर में निकालेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। अगर वैक्यूम एंड ऑयल रहा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल निकाल लेंगे हम लोग, है ना। Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन यही है कि विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हाँ सर। अंडरस्टूड है ये सब चीज़। आज के लिए हमको लगता है इनफ रहेगा, आज बहुत हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और करते हैं, है ना। हाँ ओके, स्नेल्स लॉ पूरे अच्छे से क्लियर समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं स्नेल्स लॉ में? हाँ यस सर, इधर तक आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है, चलो। ओके।